Good morning, everyone. Good evening, good afternoon. Thank you so much for joining and welcome to the wonderful session of relationships which we are doing. And today we will be concluding this amazing, powerful chapter. आज power and relationship का last day है. So we'll be concluding that. So thank you so much for being in this journey. Thank you so much for joining at different time zones from different parts of the world. A very, very, very warm welcome to each and every one of you. Thank you so much. Good morning, Anju ji. Good morning, Rajkumari ji. Good morning, Vijay ji. Good morning, Radhika. Good morning, Madhu ji. Thank you so much for joining and being here every day, every part of this journey. Thank you so much. You will be putting up to yesterday's recording. हाँ जी, एक फ्राइडे की रिकॉर्डिंग आई थिंक 25th डे की रिकॉर्डिंग में कोई टेक्निकल इशू आया है शायद, but I think but other days are fine, so I'll be putting all of them today after the session. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. Anju ji, nice Okay. scarf you're wearing. Nice scarf you're wearing. Oh, thank you so मैं much. बहुत एडमायर करती हूँ आपके स्कार्फ से। एक उस दिन भी प्रिंटेड पहना था, बहुत अच्छा लग रहा था, मल्टी। Thank you so much. Thank you so much, Mamta ji. Thank you so much. Okay, great. So let's let me share this chapter, the last bit of it. So yesterday we read, I'll just show you the previous page. So yesterday we read that love is the power that connects everything in our life. So whether अगर लव रहेगा जिंदगी में, लव की पावर रहेगी हमारे अंदर, जब हम उसको जान जाएंगे तो कोई भी पावरफुल इंसान एक कमजोर इंसान को ओवर पावर नहीं करेगा, कोई अमीर इंसान एक गरीब इंसान को नीचा नहीं दिखाएगा। बिकॉज ये सब क्यों होता है, जहाँ इसलिए होता है क्योंकि वहां पे पावर ऑफ लव, द फोर्स ऑफ लव दैट इज मिसिंग। कोई किसी को धोखा नहीं देगा, कोई कनिंग नहीं होगा, कोई किसी का दिल नहीं दुखाएगा, बिकॉज वी हैव एक्चुअली इन्वोक द पावर ऑफ लव. सो लव इज द पावर दैट कनेक्ट्स एवरीथिंग. और रोज हमारे पास हर सेकंड, हर क्षण बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं टू give love, to be in good feelings, to be grateful. And on the other hand, अगर हम negative feelings देते हैं तो क्या होगा? So there will be a domino effect. Whatever we give, we will receive. Everything will start falling apart. Whether we don't know वो किस रूप में हमारे साथ वापस आएगा, whether it in relationships, money, finances, career, we don't know. So, and the other Marcus Aurelius ने क्या लिखा कि if you're distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. And this you have the power to revoke at any moment. तो अगर हम distressed हैं, अगर pain में हैं, अगर दुखी हैं, एक्सटर्नल लोगों से अगर किसी ने कुछ हमें बोल दिया, कोई ऐसे चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस आ गए जिससे हमें दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो उसकी वजह से नहीं है, पर हमने उसको कितना बड़ा बना लिया, कितना उसको एस्टिमेट दे दिया, कितना उसको मैग्नीफाई कर लिया. दैट इज हाउ मच पेन एंड हाउ मच distressed, or how much depressed, or how much anger, how much hatred we cultivate in ourselves. It's all because of what we have estimated that. And this, और उस पावर को, उस एस्टिमेशन को हम कभी भी रोक सकते हैं, क्योंकि ऐसी पावर हमारे अंदर है, हमने इसको जान लिया है.
So everyone is okay up to this page? Did Yes, everyone ma'am. understand this phrase which Roman Emperor Marcus has said? कि हमारे ऊपर ही है कि हमने उसको कितना बढ़ावा देना है, कितना उसको लेट गो करना है। कि कौन सी बड़ी बात हो गई, इसको तो हम गुड फीलिंग्स में रह के उसको उसका उस इंसान का, उस बात का, उस चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में भी ग्रेटिट्यूड करके कि जो है वो भी बहुत बढ़िया है, जो नहीं है वो भी बहुत बढ़िया है। किसी ने दुख दिया, कोई बात नहीं, उसकी एक पॉजिटिविटी को चूज करके हम उसको ग्रेटिट्यूड, उसको लव दे सकते हैं। बाकी अगर उसमें 100 कमियां हैं हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इट इज अप टू अस how much we magnify, how much we expand or contract that thing. और हमारा जो पेन, हमारा दुख, हमारा दर्द, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है, जितना एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के ऊपर, कि हमने उसको कितना महत्व दिया है, कितना उस एनर्जी पे हम उसको फोकस कर रहे हैं, कितनी उसको पावर दे रहे हैं। अब छोटी सी बात को हम बहुत बड़ा बना सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें लोगों के साथ हो जाती हैं, वो उसमें से भी आराम से निकल के आगे बढ़ जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा होता कि हम बहुत चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस से तो आराम से निकल जाते हैं, उसमें पता नहीं कहाँ से हमारे में शक्ति आ जाती है और हम उसको पार कर जाते हैं। लेकिन कई बार छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी उस पे भी हमें वो चीज इतनी पिंच कर जाती है, इतनी हर्ट हो जाते हैं कि हम उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। राइट? सो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा उसको फीलिंग्स देते हैं, नेगेटिव कि पॉजिटिव। Are we on the above the line or below the line? Okay, so let's read further. May I have the Can I volunteer? read? I'll read. Yes, please. Thank you, Rajna. When you're feeling enthusiastic, happy, and cheerful, those good feelings affect everyone you come into contact with. Even if you connect with a person just briefly in a store, on a bus, or in an elevator, when your good feelings make a difference to any person you connect with, the effect of both one instance on your life is almost incomprehensible. Remember, there's no such thing as a small act of kindness. Every act creates a ripple with no logical end. Scott Adams, cartoonist. Yes. So हमारी feelings दूसरों की feelings के ऊपर अफेक्ट करती है। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहुत एंथुजियास्टिक हूँ, हैप्पी हूँ, चेयरफुल हूँ, खुश हूँ, तो मैं जिसके भी साथ मिलूंगी, चाहे मैं ग्रोसरी लेने जा रही हूँ, चाहे मैं बस में ट्रैवल कर रही हूँ, या मैं ड्राइव करते हुए गाने गा रही हूँ, तो या मैं लिफ्ट में जा रही हूँ, everyone I will connect with or I come in contact with, I am giving that ripple effect to that person. मेरी vibrations, मेरी frequencies ट्रैवल होती है कि नहीं? जैसे कई बार होता है कि आप बस में बैठे हो, या ट्रेन में बैठे हो, या प्लेन में बैठे हो, और दूसरा इंसान आपसे बात भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ हेडफोन लगा के अपने फोन पे कुछ देख रहा है, और जो उसको देखते देखते वो हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। तो अगर आपने उसको देखा, आप जिस भी मूड पे हैं, उसकी हंसी से आपको लगता है ना कि यार ये क्या कर रहा है, ये हंसे क्यों जा रहा है, थोड़ी सी स्माइल आती है कि नहीं आती? आप भी उसको देख के हंसना शुरू कर, हम भी उसको देख के हंसना शुरू कर देते हैं, राइट? लेकिन से फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी हैप्पी एंड सडनली समवन वॉक्स एट होम, घर में कोई फैमिली मेंबर है और उसका मूड बड़ा खराब है, और वो आया और उसने आते ही गुस्सा करना शुरू कर दिया, ही इज बिलो द लाइन और शी इज बिलो द लाइन, और कोई बच्चा स्कूल से आया एंड ही और शी डिडंट हैव अ गुड डे, तो क्या होता है, हमारा मूड भी उनका अफेक्ट होता है कि नहीं होता? अगर कोई भी फैमिली मेंबर, फैमिली में कोई बीमार है, उनके साथ कुछ, उनको प्रमोशन नहीं मिली, उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, और एनी चैलेंज, जॉब चली गई, तो उसका असर हमारे ऊपर होता है कि नहीं होता?
अगर हम 50% के नीचे है। हाँ, नीचे हैं या ऊपर है, दैट डजंट मैटर। अफेक्ट होता है कि नहीं होता? होता है इफेक्ट। अफेक्ट होता है, राइट? तो अगर नेगेटिव फीलिंग्स का अफेक्ट, हाँ जी, सो अगर नेगेटिव फीलिंग का अफेक्ट होता है और हम भी उनके साथ बिलो द लाइन चले जाते हैं, तो पॉजिटिव फीलिंग का अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फीलिंग्स तो सेम ही है। अगर नेगेटिव फीलिंग का इफेक्ट होता है तो पॉजिटिव का भी होगा। तो अगर हम हमेशा हाई हाई अबव द लाइन फीलिंग्स में रहेंगे तो उसका भी इफेक्ट हमारे फैमिली मेंबर्स पे, हमारे जिस भी इंसान के साथ हम कांटेक्ट में आते हैं उस पे होगा। जैसे मैं बहुत, जैसे लाइक यू नो, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम अबव द लाइन फीलिंग, मैं गाने सुन रही हूँ, मैं वॉक कर रही हूँ पार्क में, सबको हेलो बोल रही हूँ, मैं स्माइल कर रही हूँ, फिर मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ ओ वाओ, यू नो यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। फिर चेकआउट पे मेरे को कोई लड़की जो भी मेरे को सर्व कर रही है, एंड आई एम लाइक ओ हाउ वाज योर डे, आई एम हैविंग सच अ गुड डे, एंड देन मैं उसको थैंक यू बोल के बोलती हूँ have a wonderful day, you know you're working so hard, have a magical day, और मैं उसको blessings दे के जाती हूँ। and everyone I'm touching, अगर मैं सड़क पे जा रही हूँ, अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है और मैं उसके ऊपर मैजिक डस्ट डाल रही हूँ कि हे भगवान इसकी सेहत को बहुत सारी सेहत देना, ये अपने पैरों पे खड़े होके चलना शुरू कर, लाइक आई एम डूइंग द मैजिक डस्ट, मैजिक वॉन्ड, सबको ब्लेसिंग्स कर रही हूँ, खुश हूँ। सो व्हाट एम आई गिविंग आउट? व्हाट एम आई गिविंग आउट? पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन। फीलिंग्स। I'm happy, I'm cheerful, I'm excited, and तो वो लोग भी सोचेंगे यार ये कौन से प्लैनेट पे है, ये कौन से क्लाउड पे है, इसको क्या हो गया। और अगर हमारे घर वाले भी हमें कुछ बोल रहे हैं, मैंने अपने कान में वो लगा रखा है और मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो डिसाइड कर लिया कि आई एम गोइंग टू स्टे अबव द लाइन नो मैटर व्हाट। तो उनको भी सोचने पे ये मजबूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे कि यार इसको तो जो मर्जी बोल दो, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक जैसे बच्चे हैं, उनको जितना मर्जी बोल लो, कई बार हम बोलते हैं कि नहीं यार इनको वो तो सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं, हमारा तो कोई सुनता ही नहीं है। आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं है, वो तो अपनी मन मर्जी करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि नहीं आजकल की जनरेशन के लिए, सही है। बोलते हैं ना कि आजकल Yes. के बच्चों को कुछ नहीं बोल सकते, वो तो मन के मर्जी हैं, अपनी अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, अपने लिए जीते हैं, जो भी करते हैं, राइट? सो सिमिलरली हमारे लिए भी लोग ये बोलना शुरू कर देना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये तो अपने में ही रहती है, अपना ही पता नहीं क्या क्या करती रहती है, या ये तो सेशन ही अटेंड करती रहती है, ये तो पागल हो चुके हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, इनको तो कुछ भी बोल दो, इनको कोई असर ही नहीं होता। अगर ये बोलना शुरू कर दिया लोगों ने, दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक। that means we are above the line. Yes. We are trying our best to stay above the line, right? Because we have learned this new technique, we have learned this new power, we have invoked this new power, and we are ready to give it a go. And no matter what, we will just focus on staying above the line. That's it. यही हमारी आगे जाके जिंदगी का फ्यूचर का गोल है, और इसी को प्रैक्टिस करते हुए हमारे सपने, हमारी ड्रीम की दुनिया हम जीने वाले हैं और पूरे होने वाले हैं। So everyone, you are ready with me to be above the line always, no matter what. अगर हम एक्साइटेड नहीं रह सकते, एंथुजियास्टिक नहीं रह सकते, हैप्पी नहीं रह सकते, होप, सेटिस्फैक्शन, ये भी दो अबव द लाइन की फीलिंग्स हैं। हम होपफुल रह सकते हैं, हम जिस कंडीशन में हैं हम उसमें सेटिस्फाइड रह सकते हैं और उसका शुक्राना कर सकते हैं। इसी को करते करते हम ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन ग्रैटिट्यूड इज द simplest and easiest way, and it is the bridge between to go and reach the feeling of love. Easiest and simplest, इन दो फीलिंग्स को हमें पकड़ना है।
अगर लव की फीलिंग्स नहीं आ रही तो शुक्राना करना है, शुक्राना की नहीं आ रही तो एटलीस्ट हैप्पी रहना शुरू करो, वो तो रहना ही रहना है चाहे नो मैटर व्हाट. So remember, there is no such thing as a small act of kindness. Every act creates a ripple with no logical end. आपने आज किसी को स्माइल दी, और जैसे या मैंने किसी को स्माइल दी, आपने वीडियो ऑन करके रखा and you have a smiley face. This is, don't think that it is a small act of kindness. It's a very, very big act of kindness. Because every act creates a ripple effect with no logical end. आपके स्माइलिंग वीडियो ऑन से हो सकता है दूसरों को कितनी मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिल रही हो कि ये इंसान हमेशा वीडियो ऑन करके स्माइली फेस करके रहता ही है. You know, it's very, very inspiring. Every act is a huge act. It is not a small act, whether you are giving blessings, whether you're giving love, whether you're being kind, whether you're being compassionate, or you're just giving a smile to someone. And these are all free, all free. You can give blessings for free. You can give smiles for free. You can give your positive vibrations for free. Everything is free. और इसका पूरे वर्ल्ड में क्या क्या इफेक्ट होता है मैं आपको बता नहीं सकती. And be very, we have to be very, very grateful कि we are living in countries जहाँ पे पानी की कोई दिक्कत नहीं है, खाने की कोई दिक्कत नहीं है, इतना abundance and abundance में हमारे पास सब कुछ है. And thank you God that we are not born in countries like Africa जहाँ पे पानी नहीं है, लोगों को किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स तक वॉक करके पानी लाना पड़ता है, खाना नहीं है. When you look at the people and the kids in Ethiopia or African countries, हम सबको मालूम है कि वहाँ की क्या हालत है, तो क्या हम उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं? Right? So gratitude तो आप भर भर के हर किसी का कर सकते हो, हर किसी का. So, and small act of kindness creates a ripple with no end. जैसे वो ripple, say for example, ripple is like जैसे आपने किसी still water में एक stone फेंका तो वो कैसे waves create होती हैं, उसमें waves create हो जाती हैं, तो that is the ripple effect, domino effect. जैसे अभी pandemic आया, pandemic की वजह से उस पेंडेमिक की वजह से क्या क्या अफेक्ट हुआ. लोग घर में बैठना बंद शुरू कर दिया, फिर बिजनेसेस बंद हो गए, लोगों की जॉब्स चली गई, इनकम आनी बंद हो गई. यू नो, एवरीवन वाज सो, जैसे मेड्स के जॉब्स के ऊपर असर पड़ गया, हम उनको पैसे नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हमारी इनकम नहीं आ रही. तो कैन यू सी हाउ इट अफेक्टेड, द रिपल इफेक्ट, द डोमिनो इफेक्ट वर्क्स. सो इसी तरह से एक एक्ट ऑफ काइंडनेस बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक जाता है. अगर हम यहाँ पे 50 लोग बैठ के उस ईश्वर का अगर शुक्राना कर रहे हैं कि इस वर्ल्ड में पीस हो, सबके घर में अबंडेंस हो, सबके घर में खूब खुशियां हो, उनके रिश्ते अच्छे हों, तो हमारी ये मास वाइब्रेशंस, हमारी मास प्रेयर्स हमें नहीं मालूम कि कहाँ तक जा रही हैं. क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, आप राजकुमार जी दुबई में हैं, कई लोग इंडिया से हैं, कई यूएस से हैं, कोई हांगकांग से हैं, कोई सिंगापुर से हैं. सो can you see what kind of ripple effect we are creating all over the world? और सबसे पहला इफेक्ट हमें किस में नजर आता है? हमारी फैमिलीज के ऊपर. हमने पहले इसको सीखा, फिर हमारी वाइब्रेशंस हमारी फैमिलीज के ऊपर जा रही हैं, हमारे फ्रेंड्स के ऊपर जा रही हैं, हमारी कम्युनिटी में जा रही हैं. राइट? So this is how we are creating that effect. So it is very, very powerful. और अपने एक्ट ऑफ काइंडनेस को हमेशा करते रहिए, हमेशा स्माइल करते रहिए, हमेशा लव करते रहिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड करते रहिए. इट इज सो पावरफुल. हमें लगता है कि यार किसी को स्माइल देना है, ये तो बहुत छोटी सी बात है.
It is a huge act of kindness. Huge act of kindness. Next paragraph. Love is the solution and the answer to every relationship. You can never improve a relationship with negativity. Use the creation process for your relationships and give love to receive. Use the keys to power for your relationships. Notice the things you love. Make list of the things you love. Talk about the things you love and turn away from the things you don't love. Imagine having the perfect relationship. Imagine it at the highest level you can and feel having it with all your heart. If you find it difficult to feel good about a relationship, then love everything else around you and just stop noticing the negative things in the relationship. वाओ, ये लास्ट पैराग्राफ में पूरे चैप्टर की समरी है. तो किसी का भी कुछ मिस हो गया है, कुछ हो गया है, आप ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ लोगे ना तो आपको पूरे चैप्टर का वो समरी में मिल जाएगा. बिकॉज हमने पीछे पावर में पढ़ा था ना, कीज ऑफ पावर क्या थी? कीज ऑफ ग्रेटिट्यूड था, कीज ऑफ प्लेफुलनेस था एंड कीज ऑफ लव था. राइट? तो ये जो एक्ट ऑफ काइंडनेस की बात कर रहे हैं, ये क्रिएटेड एक्ट है जो हमने ऊपर पढ़ा. तो क्रिएटर कौन है इसका? It says every act creates a ripple with no logical end. So who is the creator? We are the creators. We are the creators of that symbol, and that will create a ripple effect. लेकिन अच्छे रिलेशनशिप का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? लव. हमें नेगेटिविटी को फोकस नहीं करके पॉजिटिविटी, उनकी एक चीज पॉजिटिव, उसकी लिस्ट बना के हमें क्या उनमें अच्छी लगती है उसी के बारे में बात करनी है, उसी के बारे को फोकस करना है, उसी के बारे में ग्रेटिट्यूड करना है. नोटिस द थिंग्स यू लव, मेक लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू लव, टॉक अबाउट द थिंग्स यू लव एंड टर्न अवे फ्रॉम द थिंग्स यू डोंट लव. और हम जो 7 मिनट की विजुअलाइजेशन कर रहे थे, उन्होंने ये लास्ट में यही बोला है, इमेजिन हैविंग द परफेक्ट रिलेशनशिप, इमेजिन एट द हाईएस्ट लेवल यू कैन एंड फील हैविंग इट विद ऑल योर हार्ट. ये 7 मिनट में यही करना है. If you find it difficult to feel good about a relationship, then love everything else around you. अच्छा, ये भी सॉल्यूशन बता दिया उन्होंने. उन्होंने बोला कि अगर आप रिलेशनशिप में कुछ भी फीलिंग गुड नहीं ला सकते, लव नहीं दे सकते, बहुत मुश्किल हो रहा है, तो फिर उसको छोड़ के जो भी आपके पास सब कुछ अच्छा हो रहा है उसको पकड़ लो. लव एवरीथिंग एल्स अराउंड यू. जैसे से फॉर एग्जाम्पल फैमिली मेंबर में एक ऐसा इंसान है जो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो रहा, हमसे नहीं लव की फीलिंग्स आ रही, नहीं आ रहा ग्रैटिट्यूड उस इंसान के बारे में, चैलेंजिंग है क्योंकि हमने ये सीखा है अभी. तो जो भी और हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हमारा जॉब अच्छा है, हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारा घर अच्छा है, हमारी कंट्री अच्छी है, हमारा सिटी अच्छी है, इनकम आ रही है, बस बाकी चीजों को लव करना शुरू करो. And just stop noticing the negative things in a relationship. लेकिन किसी भी रिलेशनशिप में नेगेटिव थिंग्स को फोकस करना बंद कर देते हैं आज से, because that will create the ripple effect of negativity in our lives. जो हम नेगेटिविटी देंगे वही हमारे पास वापस आए. Right? So I think we have finished the chapter here. Oh, No, yes. Para is Yeah. Love can do anything for you. All you have to do is give love by feeling good, and any negativity in your relationship will fade away. Whenever you are faced with a negative situation in a relationship, the solution is always love. You won't know how it will be solved, and you can never know how, but if you maintain feeling good and give love,
it will happen. The message from Lao Tzu, Buddha, Jesus, Muhammad, and every great being is loud and clear love. हाँ, तो कुछ भी करो, सबको प्यार दो, and love can do anything for you, and love is the only solution in a relationship. लेकिन आपको ये इसमें लिखा है कि you won't even know how it will be solved. कैसे solve होगा उसको भूल जाओ, कैसे होगा भूल जाओ. Don't focus on how, just allow. नेवर थिंक ऑफ हाउ कि कैसे मेरी जिंदगी में पैसा आएगा, कैसे मेरे रिश्ते अच्छे होंगे, मैं क्या करूं, ये मेरे को तो उम्मीद ही नहीं है, आई एम नॉट होपफुल, मेरे को डाउट है, फियर है, whatever. We just don't focus on how. It will happen and you हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे होगा. It will happen. कैसे? Just by staying in above the line feelings, just by giving love and gratitude to the people and to everything else which is going good in our lives. और ये जो रिलेशनशिप का चैप्टर था, इसमें लाओ त्सु, बुद्धा, जीसस, मोहम्मद और जितने भी बड़े बड़े राइटर्स फ्रॉम 6th 4th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जिन्होंने ये मैसेजेस कई कई हजारों साल पहले लिखे थे. अगर इस बुक पे आप बिलीव नहीं करते, मैं जो बोल रही हूँ बिलीव नहीं करते, अगर आप बुद्धा, जीसस, मोहम्मद, कुरान, बाइबल, गीता, रामायण, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, हर बुक में हर जगह यही लिखा हुआ है कि प्यार से ही सबको जीता जा सकता है. हेट cannot conquer hate, only love can conquer hate, because hatred will paralyze us, right? So this is the message is very loud and clear. और वो power of love कहाँ पे है? हमारे अंदर है, वहीं से हमने उसको create करना है, वहीं से हमें उसको generate करना है. So we all should have वो कौन सी मूवी का गाना है कि गाना नहीं है, there's a dialogue कि हंसो खेलो खुश रहो, एंड वो आई थिंक इट्स अ वेरी फेमस मूवी, आई कांट रिमेम्बर. ओ यस, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में वो एकदम एंड सीन में वो बोलते हैं ना, जा जी ले अपनी जिंदगी, बोलता है ना कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. यस मैम, उसके फादर बोलते हैं. हाँ, सो आज से हमें वो जिंदगी जीनी है जो हम जीना चाहते हैं, कि जी लो अपनी जिंदगी, खुश रहो, हंसो खेलो, डांस करो, एक्साइटेड रहो, हैप्पी रहो, लोगों को, अपने आप को प्यार करो, दूसरों को प्यार करो, ग्रैटिट्यूड करो अपना, ईश्वर का, लोगों का, जिन्होंने हमारी जिंदगी में बहुत बहुत भर भर के, जिनकी वजह से आज हम जहाँ पे हैं वहां पे हैं. और खासकर उन लोगों का कि जो बहुत डिफिकल्ट थे, पेट्स, हमारे पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स, जिनकी वजह से अगर वो इस तरह हमारे साथ बिहेव नहीं करते तो आज हम इस सेशन में बैठ के ये इतनी बड़ी नॉलेज और विजडम नहीं पा रहे होते. सबसे पहले तो वो उन लोगों का शुक्रिया अदा करो कि जिनकी वजह से हम आज यहाँ पे बैठे. So thank you so much, Rajkumari ji, for reading this beautiful chapter. And I think now we'll just read quickly the points of power. The points of power are the summary of this whole chapter. आप इसको कोई भी point ऐसा जो आपकी लाइफ से कनेक्ट करता हो, जिससे आप कनेक्ट करते हो, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं. So let's read this. With every single person you come into contact, you are either giving love or you are not. And based on what you give, that is what you receive. Give love to others through kindness, encouragement, support, gratitude, or any good feeling, and it comes back to you multiplied in every area of your life. Look for the things you love in a relationship more than you notice negative things, and it will appear as if something incredible has happened to the other person. हाँ, so first 3 points में है कि whatever you give you will receive. और अगर हमें लव कैसे देना है, लव देने के क्या एक्ट्स हो सकते हैं? काइंडनेस देके,
किसी को इंकरेज करके, किसी की हेल्प करके, मदद करके, किसी का शुक्राना करके, गुड फीलिंग में रह के, ये सब करने से अपने अंदर के इंसान को, अपनी आत्मा को हम ये उसमें झांक के कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं कैसी इंसान हूँ, मैं कैसा बनना चाहता हूँ, क्या मैं बाहर से काइंड हूँ और अंदर से नहीं हूँ, क्या मैं ऊपर से दिखावा कर रही हूँ या अंदर से कुछ और हूँ। तो अपने अंदर झांकना है, राइट। और किसी थर्ड पॉइंट इज, किसी भी रिलेशनशिप में नेगेटिव चीजें ढूंढने की बजाय वो चीज ढूंढो जिसको आप लव करते हो, एंड something incredible will happen to that person and to you in your life. Yes, fourth one. Trying to change another person, thinking you know what is best for another person, thinking you are right and another person is wrong is not giving love. Criticizing, blaming, complaining, nagging, or finding fault with another person is not giving love. You have to be happy to receive the happy versions of other people. The force of love presents you with a whole array of personal emotional trainers disguised as everyday people, but they are all training you to choose love. हाँ, तो अगर हम दूसरे इंसान को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये बताने की कोशिश कि जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ तुम भी वैसा करो, तो दैट इज नॉट गिविंग Love. एंड किसी को क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, कंप्लेन करना, नैग करना, किसी में गलतियां निकालना, दैट इज नॉट गिविंग लव। हम अगर ये कर रहे हैं कि हाँ नहीं मैं उसको सुधारना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उसको ठीक करता हूँ, उस पर गलतियां निकालता हूँ, दैट इज नॉट गिविंग लव। और this I love this point, you have to be happy to receive the happy versions of people. आप ही अगर खुश नहीं हैं तो अगर हम ही खुश नहीं हैं तो हमारी जिंदगी में हैप्पी लोग नहीं आ सकते। हमें खुश रहना है to attract happy versions of every person. Yes, next, and the force of love, अब हमारे आसपास सारे पर्सनल इमोशनल ट्रेनर्स कोई ना कोई रूप धारण करके हमारे जिंदगी में रोज हैं। किस लिए हैं? किस रूप में? कोई हस्बैंड के रूप में, कोई वाइफ के रूप में, कोई बहन, भाई, मदर इन लॉ, बच्चे, मैनेजर, स्टाफ, मेड, हर तरह के रूप में वो रूप धारण करके हमारी जिंदगी में वो आए हुए हैं। क्यों? हमें एक ऐसा इंसान बनाने के लिए और ऐसी अपॉर्चुनिटीज देने के लिए हर रोज कि भैया अब तो लव को चूज कर लो, अब तो इसका शुक्रिया अदा कर दो, अब तो प्यार कर लो, अब तो मेक दैट चॉइस, मेक दैट चॉइस। क्योंकि उनको सिर्फ इस धरती पे इसलिए भेजा गया है हमें तंग करने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें रोज उल्टा सीधा बोलने के लिए। क्यों? Why? To train us. To make us strong, to make us follow the path of love. ऐसे कई कोई किस्मत वाले लोग हो सकते हैं जिनको ऐसे बड़े डिफिकल्ट लोग मिले हो इंसान में के रूप में। सब Yes. बहुत किस्मत वाले हैं हम लोग कि हमें ऐसे लोग मिले हैं ताकि वो हमें रोज धक्का देते हैं, रोज पुश करते हैं, भैया अब तो चूज कर लो, अब तो इतने साल हो गए, अब तो चूज कर लो, अब तो इतने साल हो गए। लेकिन हम लोग तो यार ये क्यों हमारी जिंदगी में है, ये क्यों आ गए हमारी जिंदगी में। Yeah, we never realized till today. यस, We always thought it was bad luck that they came. यस, हम बोलते हैं ये हमारी किस्मत ही खराब है और फिर हमारी किस्मत खराब और हो जाती है, राइट? Yes. So we have attracted that with our words, with our thoughts, but attract नहीं है वो भी ईश्वर की वजह। अब हम जैसे हमने डिस्कस किया कि हम अंबानी के घर में पैदा क्यों नहीं हो गए, हम बिल गेट्स के घर में पैदा क्यों नहीं हो गए, अच्छे अच्छे लोग क्यों नहीं आए हमारे लिए, क्योंकि
हमें ये रास्ते पे आना था, ये शिक्षा मिलनी थी कि चूज लव, चूज लव, चूज ग्रैटिट्यूड। लव मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लव इज टफ, yes. Why is it tough? Because we are learning, we are still practicing, we are just beginning this journey. मुश्किल होगा, लेकिन हमने रोज उसको प्रैक्टिस करके उन पेट्स के साथ 10 में से 10, 100 में से 100 नंबर लेके आने हैं और उनके सामने ऐसे डट के खड़ा होना है कि विद फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, फुल ऑफ लव, नाउ वी आर वेयरिंग द शील्ड ऑफ दिस फीलिंग्स, अब आओ सामने हमारे, वी आर रेडी, right? So this is what we have to practice. Next point. You can stick everything you love and want to you by looking for the things you love in other people and saying yes to those qualities with all your heart. Very important point, very technical point to understand. You can stick everything you love and want to you by looking for the things you love in other people and saying yes to those qualities जो आपके दिल को अच्छी लगती है, जो आपके दिल को छू जाती है, बस उसी को फोकस करना है। Next one. You can't talk about or hear negativity and have good feelings. Life is presenting every person and circumstance to you, so you can choose what you love and what you don't love. When you react to anything, you are reacting with your feelings, and as you do, you are choosing it. हाँ, You आप ca- जैसे वो उसमें बुक में चैप्टर में था, योर रिएक्शन चूजेस इट। अब कोई ऐसे पेट्स, ऐसे शब्द, ऐसे एक्शंस वो हमारे साथ कर जाते हैं कि हमें मजबूर हो जाते हैं, हम रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन हमारी रिएक्शन, जैसे भी हमारी फीलिंग्स है, हम नेगेटिव और पॉजिटिव, वही हम उस क्षण में चूज करते हैं और फिर वही हमारे साथ होता है। So life is presenting us every person and every circumstances so that we can choose what we love and what we don't love. हर सिचुएशन में हमें यही करना है, नहीं मेरे को बोलना नेगेटिव, नहीं मेरे को सोचना नेगेटिव, नहीं मेरे को कुछ रिएक्ट करना, बस चुप रहना है, चुप रहना है, मेरे को गॉसिप नहीं करना। नहीं, शक्ति अगर हमारे पास, हमें लगता है कि नहीं मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, देन उन्होंने क्या बोला अभी लास्ट पैराग्राफ में कि जो भी बाकी सब कुछ अच्छा हो रहा है उसको चूज करो, उसको प्यार करो, उसका ग्रेटिट्यूड करो, राइट? बहुत ही पावरफुल है हमारी रिएक्शन, हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन में। नेक्स्ट। You can't change a negative situation with bad feelings. If you keep reacting negatively, your bad feelings will magnify and multiply the negativity. हाँ, If और you're अभी तक हम यही करते आ रहे थे, राइट? किसी ने कुछ बोला, उल्टा जवाब दे दिया, किसी ने कुछ बोला, उसका बदला लिए बिना तो मैं इस दुनिया से जाऊंगी नहीं, राइट? वो समझते क्या है अपने आप को, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, हम बात करना बंद कर देते हैं, मतलब वी जस्ट मैग्नीफाई द नेगेटिविटी। और फिर हम सोचते हैं यार हमारी जिंदगी में हेल्थ क्यों खराब हो गई, जॉब क्यों चला गया, फाइनेंसेस का क्यों आ गया, बिकॉज we have provided the negativity, we reacted to it, and that is why with law of attraction के हिसाब से वही हमारी जिंदगी में आना। Next one. change. Okay. If you are feeling fantastic, the force of your magnetic field creates a shield that no negativity can penetrate. Changing the way you feel is easy compared to running around trying to change the circumstances of the outside world. Change your feelings and the outside circumstances will change.
The हाँ, more you ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इसको प्रैक्टिस करने की हमें जरूरत है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि अच्छा इस इंसान से नहीं बन रही, चलो दूसरे इंसान के पास जाते हैं, ये जॉब में मैनेजर खराब है, दूसरा दूसरा जॉब चेंज कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे मेरे से मैनेजर इज नॉट वेरी नाइस। फिर हम दूसरा जॉब चेंज करते हैं, फिर हम तीसरा जॉब कर सकते हैं, चेंज करते हैं, एंड समटाइम्स इट हैपेंस इन द रिलेशनशिप्स एज वेल। लेकिन करना क्या है? व्हाट डू वी हैव टू डू? have to change our feelings. फिर तो हम भागते ही रहेंगे पूरी दुनिया में, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर। जॉब चेंज कर सकते हैं, हाँ। हस्बैंड वाइफ अपने रिश्तों को चेंज कर सकते हैं, हाँ। लेकिन बहन भाइयों का क्या करें? माँ बाप का क्या करें? बच्चों का क्या करें? उनको चेंज कर सकते हैं रोज रोज? नहीं, वो भी तो किसी रीजन से हमारी जिंदगी में आए हैं। उनसे हम डाइवोर्स ले सकते हैं? बच्चों को, आज बच्चों को डाइवोर्स दे दिया, आज बहन भाइयों को डाइवोर्स दे दिया, आज अपने मैनेजर को डाइवोर्स दे दिया, अपने पेरेंट्स को डाइवोर्स दे दिया। वैसे वेस्टर्न कंट्रीज में ये भी होना शुरू हो गया है आजकल। लेकिन नहीं दे सकते, सिर्फ एक ही रिश्ते को डाइवोर्स दे सकते हो, हस्बैंड एंड वाइफ। कोई और रिश्ता सुना है जिसको डाइवोर्स दे सकते हो? No. क्यों नहीं देते फिर भैया? Can't उसको hear, डाइवोर्स, ma'am. उसको, उनको भी तो डाइवोर्स दे दो। Can't hear, ma'am. राइट? Yes. बिकॉज वी डोंट हैव द चॉइस। उसमें चॉइस ही नहीं है। जैसा बहन भाई दिया है, जैसे पेरेंट्स दिए हैं, जैसे बच्चे दिए हैं, हमें उनके साथ निभाना पड़ता है। बट पड़ता है कि नहीं पड़ता? हाँ. सो ऑल वी हैव टू डू कि इसको चेंज कर दूं, उसको चेंज कर दूं, अब यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। पूरे वर्ल्ड को चेंज करने की जगह कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ अपनी फीलिंग्स को चेंज करना है। उसको चेंज कर लिया, पूरा वर्ल्ड आपके सामने एकदम चेंज होके आपके सामने खड़ा हो जाएगा। चेंज योर फीलिंग्स एंड द आउटसाइड सर्कमस्टांसेस विल चेंज। कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट। the more you give love and feel good, the more magnetic your field becomes and the more it expands, drawing everything and everyone you love to you. हाँ, जितना हम खुश रहेंगे, अबव द लाइन रहेंगे, जितना प्यार देंगे, जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे, उतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हमारा ऑरा एक्सपैंड होगा। और जैसे हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड और ऑरा एक्सपैंड होगा पॉजिटिविटी का, every loving person will start getting attracting to us. They will all start coming into our lives. Because why? Because we are working on ourselves, we are working on our feelings, we are trying to choose the good feelings. We are trying to choose every second of our life to stay in love and good feelings and in gratitude. इस पे हमने काम किया, इसको चेंज करने की, अपने बीइंग पे काम किया, एक अच्छा इंसान बनने पे काम किया। So I will post these PowerPoints on the group today. पर इसमें वो चीज, वो पॉइंट नोट कर लो जो आपकी लाइफ आपसे बहुत दिल से कनेक्ट करता है। Okay, so with this we end our chapter. So thank you so much for being in this journey of relationships. I hope that it has been of some usefulness, of some it has brought you some light in your life, some Ma'am, which wisdom, page is some this? knowledge. इससे हम 194. शायद Thank कुछ you. सीख पाए to practice going forward in our lives, to have beautiful relationships. That means to have beautiful relations is no other way only to give love, to change your feelings. In spite of they not getting changed, like you have to keep on trying. Sorry, say that again. Yeah, it's very difficult. As you said, love is difficult. It's difficult, and especially when you have
made your opinions about people, and you've tried a lot, but still you have to be positive and keep on trying and try to be loving and caring, because you have tried everything. You've tried to, you have tried all the ways that people should change. People should change their behavior, change their feelings for you, but it has never happened. हाँ, क्योंकि हम दूसरों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, यही तो गलती कर रहे हैं भाई। अभी भी आप ये बोल रहे हो कि we tried to change them but it never happened. No, but we were always positive, but we gradually became negative because we never saw positivity in them. It was all हाँ, about us. तो ये भी एक पॉजिटिविटी नहीं मिल रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थॉट है कि उस इंसान में कुछ पॉजिटिव है ही नहीं। Yeah, we lost our hopes because initially you're so interested, like जब आप न्यू मैरिड करती, you're so enthusiastic, you're so lively, you are so positive when you come. Gradually, what type of person you become, you don't like anybody, or you develop negative feelings for everyone. It was not initially. क्यों? तो क्योंकि वो you फीलिंग्स किसने डेवलप की? everyone develops for everyone. मतलब वो gradually, हम एवरीवन की बात ही नहीं कर रहे, आपके अंदर वो फीलिंग्स किसने डेवलप की? after looking at people and their behaviors, like तो इस बुक ने क्या बताया कि जब हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, तभी तो हमारे साथ सब कुछ बाहर नेगेटिव हो रहा है। but I think like we try a level best to be positive. Do you? We observe a lot. आपने आज तक किसी को नेगेटिव फीलिंग नहीं दी? दी है, कभी but किसी को बुरा भला नहीं बोला? उसमें कुछ नेगेटिव देख के फिर वो you think, oh no, she's like this, he's like that, and gradually we also change ourselves. तो वही तो गलती हो गई ना। आप मैंने वो एग्जांपल जो दिया था कि रोल था हमारा हीरो का, हीरोइन का, लेकिन विलियन को देख के हम भी विलियन बन गए। क्या करें, कोप अप नहीं हो पा रहा। तो कोप अप करने के लिए तो ये पावर, ये टेक्निक्स, ये प्रैक्टिसेस दी जा रही हैं। People take advantage of you. They don't भाई ये देखो, understand. जो भी आप बोल रहे हो ना, पीपल टेक एडवांटेज ऑफ अस, ये भी आपने क्रिएट किया है। पीपल बाहर सब नेगेटिव हैं, वो ठीक नहीं हो रहे, चेंज नहीं हो रहे, ये भी आपके अंदर सोच है। आप जो भी वर्ड्स बोल रहे हो वो भी सब, उसमें से कुछ भी मेरे को पॉजिटिव नहीं सुनाई दिया अभी तक, तो वो भी आपके वर्ड्स हैं। Seriously, sometimes I become so negative because sometimes I become positive. Sometimes I'm at a very low scale. क्योंकि देख के ना, when you really think things are not changing, then you become negative. You need to rewire yourself. हाँ, तो फिर अब आपने ये चूज कर लिया ना कि मेरे को हीरो का रोल नहीं become करना, so मेरे को विलियन का ही रोल करना है। नहीं, आप लीव कर देते हो चीजों से, आप ओपी लीव कर देते हो। तो उसी को उठाना है, उसी फीलिंग्स को उठाना है, और वो ये एक दिन में या 5 दिन में, ये जो 7 दिन का हमने चैप्टर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे इस बुक ने बताया। सो से फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई भी एक रिलेशनशिप है जो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत नेगेटिव है, आपने बहुत पॉजिटिव होते भी कोशिश कर ली, वो नहीं ठीक हो रहा, राइट? तो लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने क्या बोला कि छोड़ दो ना उसको, छोड़ दो, अभी उसको टाइम नहीं। हाँ, आप नीरस बन जाते हो उन लोगों के प्रति, कोई नहीं फायदा नहीं 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 नहीं, उनके प्रति एक पॉजिटिविटी को चुनना है। उस इंसान में कोई एक पॉजिटिविटी है, एक, एनीवन। हाँ, पॉजिटिविटी तो है, लेकिन क्या है, एक बताओ। या केयरिंग, बट वो जितने केयरिंग पहले थे अब वो नहीं है उतने। अरे मतलब भैया, उसको constantly- छोड़ दो, जो था वो अब नहीं है, वो भी हमारी वजह से ही ये सब हुआ है। एक तो सबसे पहले हमको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, हमारी थॉट्स की वजह से हो रहा है, हमारे वर्ड्स की वजह, हमारी एक्शंस की वजह से हो रहा है। सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करना, इसको स्वॉलो करना, इसको निगलना ही बहुत डिफिकल्ट है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है।
हम इसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, वी आर इन डिनायल। हमें लगता है हम तो दूध के दूल्हे हैं, हम एकदम 100% परफेक्ट हैं, हमने तो इस घर को सब कुछ दिया, हमने तो ये भी किया वो भी किया, कोई मेरी सुनता नहीं, कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। इसी को एक्सेप्ट करना सबसे सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ पे आता है, Actually, क्योंकि हमें लगता है कि हम 100% परफेक्ट हैं, पर हम नहीं हैं। हमने भी उनको गालियां दी हुई हैं, हमने भी उनको बहुत कुछ सुनाया हुआ है, हमने भी बहुत कुछ किया हुआ है। और हो सकता है आपने उस इंसान के लिए नहीं किया हो, लेकिन हो सकता है अगर आपको आपने घर में उस इंसान को पूरा प्यार, पूरा केयर, पूरा सब कुछ दिया हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जब आप काम पे जाते हो आप अपने स्टाफ को डांट रहे हो, आपने बाहर किसी के साथ कुछ ऐसी हरकत की हो कि जो आपकी फैमिली के मेंबर के रूप में आपके साथ ही ऐसा हो रहा है। क्योंकि उन्होंने लिखा है इस चैप्टर में कि ये आपको नहीं मालूम वो किस रूप में सामने आएगा। हो सकता है आपने किसी के पैसे नहीं दिए, हो सकता है आपने किसी को आई डोंट नो क्या किया है किसी के साथ में, किसी को प्रमोशन नहीं दी, किसी के साथ बुरा किया, सबको अंदर से पता होता है कि मैंने किसके साथ क्या किया है। लेकिन इसी किसी ना किसी वजह से इस रूप में, फैमिली मेंबर के रूप में वो चैलेंज आपके रिलेशनशिप्स में आया है। यू नेवर नो कि बाहर जाके आप अपनी मेड को गालियां दे रहे हो, तो इसलिए आप हमें अपने हस्बैंड से गालियां सुननी पड़ रही हैं। हाउ डू वी नो? वी डोंट नो। बट आंखें बंद करके जब अपने अंदर झांकते हैं तो पूरी जिंदगी की पूरी पिक्चर हमारे सामने आती है कि मैंने किसको कब क्या बोला था, किसके साथ मैंने क्या किया था, और इसी वजह से शायद ये किसके मैंने पैसे नहीं दिए, किसके मैंने, अगर किसी ने मेरे से कम पैसे चार्ज करे तो मैं चुप रही, मैंने उसको बोला नहीं कि आपने मेरे से कम पैसे चार्ज करे, तब तो हम बड़े खुश होते हैं। अरे यार 50 रुपए देने थे, उसने तो गलती से मेरे को ज्यादा चेंज दे दी, चलो चलो चुपचाप पर्स में डालो और भागो यहाँ से। क्या मैं ऐसा इंसान हूँ? no और फिर want हम बोलते हैं कि to. रिलेशनशिप में चैलेंज आ गया। क्या हमने मेड को पैसे टाइम पे दिए? क्या हमने बिल्स टाइम पे किए? या जब बिल लाते हैं तो क्या हम कंप्लेन करते हैं? ऑल दीज लिटिल लिटिल थिंग्स दे काउंट। कि आप बिल को नेगेटिविटी दे रहे हो, मेड को नेगेटिविटी दे रहे हो, अपने स्टाफ को डांट रहे हो, अपने बच्चों को डांट रहे हो। कईयों पेरेंट्स को तो पता ही नहीं चलता कि बच्चों को तो ऐसे लेफ्ट राइट सेंटर में ऐसे सुबह से शाम तक डांट रहे होते हैं, क्या क्या बोल रहे होते हैं, और हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। मैं तो उनको पढ़ाई के लिए डांट रहा था, मैं तो उनको पढ़ाई के लिए डांट रही थी, मैं तो उनको अच्छा इंसान बनने के लिए डांट रहा हूँ, मैं तो उनको एडवाइस करने अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को तो 35 साल का एक्सपीरियंस है। नहीं चाहिए हमारा एक्सपीरियंस आजकल के बच्चों को। क्या आप उनको 10 बार दिन में ब्लेसिंग्स देते हो, उनको उनको इनकरेज करते हो, उनको सपोर्ट के लिए खड़े रहते हो? क्या उनकी आप अप्रिसिएशन करते हो? क्या कॉम्प्लीमेंट देते हो अपने मेड को, अपने स्टाफ को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने मदर इन लॉ? तब बात करो कि हाँ मैं ये सब कुछ करती हूँ, सब कुछ करता हूँ, अब मेरे रिलेशन ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे को मालूम है हम नहीं करते। Maybe sometimes we're wrong, but we don't know where we are wrong. एग्जैक्टली, वी डोंट नो वेयर वी आर रॉन्ग। तो इसीलिए तो हर चीज का ग्रेटिट्यूड करके अपने जो जो चीज का नहीं पता वेयर वी आर रॉन्ग, तभी तो हर चीज का हर क्षण में बी ग्रेटफुल, बी लविंग, बी काइंड, बी ऑनेस्ट, बी कंपैशनेट। क्योंकि दूसरे के साथ अंदर वो क्या फीलिंग कर रहा है, हमें क्या मालूम। हमारे हस्बैंड्स बाहर जाके इतना हार्ड वर्क करते हैं, उनका बॉस उनको डांट रहा है, उनके ऑफिस में क्या पॉलिटिक्स हो रही है, वो क्या किस चीज से गुजर रहे हैं, हमें क्या मालूम।
वो आके हमारे घर में, हम घर आते हैं तो हम उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। वो हमारे से खासकर मेन, दे डोंट शेयर लॉट ऑफ थिंग्स, विमेन तो फिर भी शेयर कर लेती हैं। वी डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू फ्रॉम इनसाइड, but are we grateful that our husbands are working hard to bring income into our family? उनकी वजह से आज घर है, खाना है, सब कुछ है। आर वी ग्रेटफुल? अब हस्बैंड्स हैं तो उनको ये नहीं पता कि बेचारे जो हाउसवाइफ हैं या जो बीवियां हैं वो बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती हैं, घर का काम कैसे मैनेज करती हैं, सारा दिन लगी रहती है। बट आर वी रिस्पेक्टफुल एंड लविंग एंड काइंड टू आवर वाइफ्स एंड आवर फीमेल पार्टनर्स या जो भी है? नहीं। हमें लगता है हमारी लाइफ ही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी कंफ्यूजिंग है, बहुत हार्ड है। वाइफ्स को लगता है हमारी लाइफ हार्ड है, हस्बैंड को लगता है हमारी लाइफ हार्ड है। मदर इन लॉ बेचारी तो बोलती है कि मेरा तो बेटा लेके चली गई, तुमने तो ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। मदर इन लॉ की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सबको अपनी ही प्रॉब्लम्स बड़ी लगती हैं। कोई किसी के पास टाइम ही नहीं है एक दूसरे की को समझने के लिए, सुनने के लिए, ग्रैटिट्यूड करने के लिए, किसी को प्यार देने के लिए, दो शब्द मीठा बोलने के लिए। बैठो तो सही अपने साथ, झांको तो सही क्या करना है, किसी को सुनो तो सही कि वो क्या किससे गुजर रहा है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, वेटर से अगर कोई गलती हो जाती है हम उसको ढाट 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 पता नहीं क्या क्या सुना दे। तुम्हें तमीज नहीं है, हमारा खाना हमने ये ऑर्डर किया था, तुम लेके नहीं आए, तुमने लेट कर दिया, तुमने ये। वी डोंट इवन रियलाइज कि हो सकता है उसके घर में डेथ हो गई हो सकता है उसकी मदर बीमार हो सकता है वो बेचारा किस सिचुएशन में आज आके वो वेटर का काम कर रहा है। हमें तो अपनी पड़ी हुई है कि हमारा खाना लेट आया, हम उसको थैंक यू नहीं बोलते, क्योंकि वी डोंट रियलाइज दैट कहीं ना कहीं इस जगह पे हमारे बच्चे भी हो सकते हैं जिनको कोई डांट रहा होगा इस टाइम, या बहन भाई। ऐसे कई इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे, सर्विस इंडस्ट्री खासकर, जहाँ पे हमारे सारे लव्ड वंस काम करते हैं, उनको भी कोई डांट सकता है ऐसे। आपको कैसा लगेगा कि आपके बच्चों को, बहन भाइयों को, हस्बैंड वाइफ को ऐसे कोई डांट दे? So it is very, very important to change ourselves, change our feelings. अब सबसे पहले दूसरों को छोड़ दो, अपने अंदर झांक के देखो कि हम कैसे इंसान हैं। क्या हम दूसरों का दुख दर्द समझ रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने बताया कि वो इंसान केयरिंग है, लेकिन पहले 100% केयरिंग था, 50% केयरिंग है, तो क्या आप वो 50% केयरिंग क्वालिटी के शुक्रगुजार हो? कईयों के तो हस्बैंड, जैसे बच्चों के पेरेंट्स छोड़ के चले जाते हैं उनको अनाथ आश्रम में, वैसे इंसान तो नहीं है ना वो, 50% केयरिंग तो है। यहाँ बट ऐसे लगता है अटेंशन बट गया है, कोई और आ गया तो ऑल द अटेंशन एंड एवरीथिंग हैज बीन डिवाइडेड। और बट दैट इज ऑल्सो योर थॉट। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि दैट पर्सन इज सो केयरिंग दैट ही इज गिविंग 50% अटेंशन टू दैट पर्सन एंड 50% अटेंशन टू मी। वाओ। कोई लोग तो 1% अटेंशन भी नहीं देते। मैम मैं आंसर करूँ इस क्वेश्चन का जो ये बोल रहे हैं अटेंशन वाली बात पे? नहीं, किस मतलब, अगर मेरा आंसर अगर किसी को ठीक नहीं लगा तो आंसर नहीं दे, बट व्हाट आई एम सेइंग इज आंसर कि ठीक जस्ट लगने की बात नहीं, मैं अपना वेरी वेरी एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट टू चेंज मैं उनके साथ आवरसेल्व्स। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी, जो वो बोल रहे हैं ना उसके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी कि थॉट प्रोसेस का क्या असर होता है। मैं उनको बस ये बताना चाह रही थी। आपने आंसर सही दिया है, मतलब जो आई बोल रहे हैं ना कि थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है उनका, उस पे मैं बात करना, बस उनको जवाब देना चाह रही थी। और आज मेरे को बहुत ही, आई मीन आई जस्ट गॉट इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन, बट आज मेरे को बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन करानी थी
जो ओके, कि नेक्स्ट टाइम। फॉरगिवनेस की मेडिटेशन करानी थी कि Sorry, कैसे I हम distracted you. अपने आप को फॉरगिव कर सकते हैं, दूसरों को फॉरगिव करना, और हमसे जाने अनजाने में, क्योंकि जैसे आपने बोला कि हमें पता ही नहीं कि हमने कहाँ गलती की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बोलो, हाँ, तो मैं जैसे से फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो, आई एम जस्ट चूजिंग एन एग्जाम्पल कि हाँ, जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैं गायत्री जी को बोलती हूँ, गायत्री जी आपके बाल बड़े डिफरेंट लग रहे हैं आज, राइट? अब आई एम गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट लाइक योर हेयर आर लुकिंग वेरी डिफरेंट, योर हेयर नॉर्मली आपके बाल ऐसे नहीं होते, दे आर लुकिंग सो डिफरेंट। अब गायत्री जी को लगेगा ये क्या मतलब है, डिफरेंट का क्या मतलब है, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? हाउ कैन शी से दैट? अब मेरी इंटेंशन क्या है, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ। हो सकता है मैंने एक अप्रोप्रिएट वर्ड जो बोलना चाहिए था वो ये नहीं यूज किया, बट मेरी इंटेंशन थी कि आई रियली वांट टू कॉम्प्लीमेंट गायत्री जी फॉर हैविंग ब्यूटीफुल हेयर। लेकिन मैंने ब्यूटीफुल वर्ड को यूज नहीं करके, क्योंकि मैं उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने बोला कि वाओ यू आर लुकिंग सो डिफरेंट। अब गायत्री जी को तो गुस्सा ही आ गया कि यार ये डिफरेंट का क्या मतलब। तो मेरी इंटेंशन थी उनको कॉम्प्लीमेंट करना, अब उनको तो गुस्सा आ गया, तो मैंने क्या किया, उनको अनजाने में ना चाहते हुए भी उनको मैंने हर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, क्योंकि मेरे उस सेंटेंस को बोलने से उनको हर्ट हो गया, उनको गुस्सा आ गया Yes. कि ये ब्यूटीफुल भी तो बोल सकती थी, अच्छा भी तो बोल सकती थी, लेकिन मेरे से नहीं बोला गया, मेरे को नहीं आता वो वर्ड, लेकिन मैंने ना चाहते हुए भी उनको हर्ट कर दिया। अब ये जो प्रैक्टिस, जो मेडिटेशन हम करने जा रहे थे, आई थिंक आई डू इट टुमारो। तो इससे क्या होता है कि हम उस इंसान sorry, से भी ma'am. माफी मांगते हैं जिनको हमें पता ही नहीं कि जाने अनजाने में हमने उनको शायद दुख पहुंचा दिया, इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट, इन द पास्ट जन्म, वी डोंट नो। सो माफी मांगना, माफ करना और अपने आप को भी माफ करना, these are very very powerful techniques which will help us going forward in this magical journey to have a bright future ahead, bright relationship, happy circumstances, and जो भी हम चाहते हैं। और forgiveness is the most powerful gift you can give to yourself. अगर किसी को गिफ्ट देना है, तो अगर आप उनको फॉरगिव कर सकते हो, तो इससे बड़ा गिफ्ट आप अपने आप को और दूसरों को नहीं दे सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे इंसान होते हैं हमारी लाइफ में कि हमको उन्होंने इतना दुख, हमें लगता है कि इतना दुख दिया है, इतना दर्द दिया है कि वो जो हमारे दुख के जख्म है वो इतने डीप हैं कि वो नासूर बन चुके हैं, और हमें लगता है कि हम कभी इस जन्म में तो माफ नहीं कर सकते उनको। लेकिन इस प्रैक्टिस से मैं आपको बता रही हूँ कि इस प्रैक्टिस से मैंने हर चीज ट्राई की थी, हर चीज ट्राई की थी, और मैंने मेरे अंदर ये था, इतनी कड़वाहट थी कि इस इंसान को मैं माफ इस जन्म में तो नहीं करूंगी। लेकिन वो भी चला गया। One day I had tears in my eyes rolling down. I was sitting down and I was able to forgive that person. कैसे हुआ मेरे को नहीं पता, क्यों हो गया ये भी नहीं पता, पर ये प्रैक्टिस करते करते हो गया। और जब वो फीलिंग फॉरगिवनेस की आई,
ऐसे लगता था कि जैसे जिंदगी का बहुत बड़ा भार जो मैं अपने कंधों पे लेके चल रही थी इतने सालों से, वो आई वॉज फ्री, आई वॉज फीलिंग सो लाइट, एंड आई जस्ट डिडंट रियलाइज कि वो इतना आसान था, पर मैंने उसको बहुत मुश्किल बना रखा था। और उससे क्या हो रहा था, मेरी हेल्थ में एवरी टाइम आई वाज इन द हॉस्पिटल, आई वाज गोइंग टू स्पेशलिस्ट, पता नहीं क्या क्या, मैं किस किस के पास मेरे को जाना पड़ता। बट वंस आई स्टार्टेड दिस प्रैक्टिसिंग, और जैसे ही वो फॉरगिवनेस हुई, everything started happening so beautifully, so magically, कि कहाँ से कहाँ ऐसे चमत्कार होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए। सो उसके लिए हमें 15-20 मिनट चाहिए उस प्रैक्टिस के लिए। सो आई विल, what I will do is I will start the session tomorrow with that practice, and then Yes. we will start the chapter of magic, the power and health. लेकिन अगर कल हम सिर्फ मेडिटेशन करके और क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन भी ले सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और कल से हम हेल्थ का भी शुरू कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड डिपेंडिंग ऑन एवरीवन्स शेयरिंग्स एंड क्वेश्चंस। सो आज मैंने उसको प्रिपेयर किया था, बट लुकिंग एट द टाइम आई वोंट हैव Tomorrow, मच ma'am. टाइम, सो Tomorrow we we start can with do it the tomorrow. meditation. Yeah. So सोनिया जी, आप अपना शेयर कर सकते हैं, if whatever you want to share, please go ahead. हाँ जी। मतलब मैं शेयरिंग करना चाह रही थी कि जैसे मेरा और मेरे हस्बैंड के रिलेशन पे, कि एक हमारा बहुत स्मूथ रिलेशन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट एक टाइम आया जब हमारे रिलेशंस खराब होने लगे, तो मैंने मतलब उस चीज को बहुत जल्दी फील किया कि हो क्या रहा था कि जो मेरे आसपास की सराउंडिंग्स थी, जो मेरे कुछ नए फ्रेंड्स बने थे, वो हमेशा अपने हस्बैंड्स की कंप्लेन करते थे। तो ना मेरे भी जो व्यूज थे वो निगेटिव होने शुरू हो गए थे, तो वो हमारे रिलेशन पे दिखने लग गया था। फिर मैंने वापस उस पे वर्क किया, मतलब ये मैं कह सकती हूँ 3-4 साल का टाइम हमारा बहुत खराब गया। तो जो वो कह रहे हैं ना कि पहले वो केयरिंग थे, या वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है अटेंशन, उनका अटेंशन नहीं गया, आपके थॉट्स जो चल रहे हैं ना वो उन तक पहुंच रहे हैं। ये मैं अपना पर्सनल, और वापस जब मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया, तो हम वापस वो जो हमारा स्टार्टिंग का रिलेशन था, अभी हम बिल्कुल प्रेजेंट उसी रिलेशन पे हैं। तो जो मैम बोल रहे थे ना कि जो कुछ है वो हम है, ये एकदम परफेक्ट है, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। थैंक यू। वेरी वेरी पावरफुल सोनिया जी, वेरी वेरी पावरफुल जो आपने शेयर किया, कि कभी भी रिलेशंस खराब नहीं थे, लेकिन जब आपने दूसरों को सुनना शुरू कर दिया कि मेरा हस्बैंड ऐसा, मेरा हस्बैंड वैसा, वो तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, तो आपकी फीलिंग्स भी नीचे जाती गई, हाँ और जी, आपने भी सेम। वैसा ही सोचना शुरू कर दिया। जी जी। मतलब उस समय तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये एकदम से हमारी लाइफ में इतना बड़ा चेंज कैसे आ रहा है। फिर मैंने उस पर जब काम किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, जो आप उस दिन अभी लास्ट बोल रहे थे ना कि अगर आज हम यहाँ पे हैं, तो उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड है, जिसको हम कब जान, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैं पास्ट को देख रही हूँ ना, इस जर्नी में मैं 1 साल से आई हूँ मैजिक की, तो मैं जब मैं पास्ट देख रही हूँ, तो वो मैं देखती हूँ कि मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड था, बट एग्जैक्ट मतलब कैसे उसको फॉलो करना चाहिए वो मुझे नहीं मालूम था। तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलता था, तो कभी लाइफ अप थी, कभी लाइफ डाउन थी। अब वो समझ में आ गया कि नहीं, डाउन तो जाना ही नहीं, वो यहाँ आके सब। यस, सो पावरफुल। और इसमें आपने इस चैप्टर के कितनी चीजों को एक ही एक्सपीरियंस में आपने उसको कवर कर दिया, कि एक तो उसमें बताया गया था कि गॉसिप, भाई जिसकी आप गॉसिप कर रहे हो उसको नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जो इंसान गॉसिप कर रहा है और जो उसको सुन रहा है, दोनों की लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको सुनने से नेगेटिव, आप बिलो द लाइन चले गए, और आपके रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो गए, बिकॉज यू वर ऑलवेज बिलो द लाइन। और दूसरा आपने बताया कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने हमें उठा के इस जगह पे इसलिए बिठाया कि कहीं ना कहीं हम एक
एक टाइम पे, और अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम में से वी आर अनग्रेटफुल पीपल, वी आर ग्रेटफुल पीपल। हमने अच्छे कर्म किए हुए हैं, हमारे अंदर अच्छे संस्कार हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं भटक गए थे। लेकिन उसको हमें अपनी लाइफ को और इवॉल्व होने के लिए और ग्रो करने के लिए, हमें ये लव, ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस का रास्ता दिखाने के लिए ईश्वर ने हमें चुना है टू बी हियर एंड प्रैक्टिस, ताकि हम और अच्छे इंसान बन सकें इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। क्योंकि जैसे आपने बताया कि पता था कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन ग्रैटिट्यूड है, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे करना है वो मेरे को नहीं पता था। तो ये बुक, ये किताब मैजिक बुक, पावर बुक, ये हमें एक स्ट्रक्चर में लाके कैसे करना है, किस तरह से करना है वो बताती। सो वेरी वेरी पावरफुल। और मेरे साथ जो था वो उल्टा था, क्योंकि मैं जैसे ही वो इंसान कुछ भी बोलती थी या बोलता था, तो मैं हमेशा उसको रिएक्ट करती थी, हमेशा उल्टा सीधा बोलती थी, पेशेंस नहीं थी, सब कुछ वो कर रही थी जो ये बुक, सबका इस बुक का उल्टा। और मेरे को फिर ये पता नहीं चल रहा था कि मैं क्यों इतनी बीमार रहती हूँ, क्यों मेरे को नींद नहीं आती, क्यों मेरे साथ इतने हेल्थ के चैलेंजेस आ रहे। लेकिन जब हेल्थ में मैं एकदम रॉक बॉटम में पहुंच गई और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तब ये जर्नी मेरी लाइफ में आई, एंड तब मेरे को एनलाइटमेंट मिली कि ये मैं क्या कर रही थी, मैं तो बिल्कुल उल्टा कर रही थी। एंड धीरे 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 जब मैंने इस बुक को फॉलो किया, इसकी प्रैक्टिस की, सब कुछ जैसा होना चाहिए, जैसा ड्रीम था रिलेशन का, हेल्थ का, हेल्थ कैसे होनी चाहिए, सब कुछ वैसे 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 धीरे 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 इट स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। मैंने बहुत छोटी छोटी शेयरिंग्स पहले भी की हैं मैजिक उस पे, तो मैंने उसमें बताया है कि जैसे मेरे हेल्थ इश्यूज, ये जो टाइम आप जैसे आप बता रहे हैं, जब मेरा टाइम था, जब मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मेरे हेल्थ इश्यूज भी शुरू हो गए थे। तो उस टाइम पे मतलब मैं कम एज की थी, तो मुझे लगता था कि बहुत जल्दी हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, तो मुझे ग्रेटिट्यूड नहीं मालूम था या ये नहीं मालूम था कि इसको ब्लेस करना। तो मैं हमेशा ये कहती थी, कोई बात नहीं भगवान जी, आ जल्दी गए बट अब जहाँ आए हैं वहां रुक जाए। तो एग्जैक्टली वही हुआ कि 7-8 साल तक मैं वहां रुकी रही, मतलब ना बढ़े ना कम हुए। लेकिन जब इस जर्नी में आने के बाद वो बिल्कुल ऑलमोस्ट चले गए हैं। यस, सेम हियर, सेम हियर। आप जैसे बोल रहे हैं कि बिल्कुल है ही नहीं, वो जो जैसी हेल्थ थी वो है ही नहीं। और बिल्कुल नहीं कैसे है। हो गया, कैसे हो गया, बिल्कुल इतने सालों की डिजीज कैसे बॉडी में से निकल के चली गई। और कहीं ना कहीं मैं ग्रेटफुल इंसान थी, मैं भगवान का शुक्रिया करती थी, दूसरों की मदद करती थी। हो सकता है उसकी वजह से मैं जितनी बार हॉस्पिटल में एडमिट रही, भगवान ने मेरे को जिंदा वापस भेज दिया घर पर एग्जैक्टली वापस। मेरे क्योंकि साथ भी जब होता आप था, लेकिन हाँ, हॉस्पिटल में बैठे होते हो ना, जैसे अब कल या परसों हमारा हेल्थ का चैप्टर शुरू होने वाला है, जब आप हॉस्पिटल में होते हो तो सिर्फ एक ही चीज मुझे कि भगवान इस बार घर हमें वापस भेज दो, इस बार घर वापस भेज दो। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल के बेड पे बैठ के सीलिंग, छत को देख रहे होते हो, आस आप बिल्कुल हेल्पलेस होते हो, आपके घर वाले बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, कुछ नहीं, आप डॉक्टरों के सहारे पे जिंदा होते हो, वो ट्यूब्स चल रही होती है, इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, देन ओनली वी रियलाइज द पावर, द सुप्रीम पावर, तब हम उसको याद करते हैं। तो ऐसा टाइम क्यों आए हमारी जिंदगी में, हम पहले से ही उस सुप्रीम पावर का शुक्रिया अदा करें, इस जिंदा होने का, ये सांसें चलने का, ये दिल धड़कने का, every single thing which God has given us. मैंने सारिका जी वेरी के ट्रू। मैजिक क्लास किया था, और मेरी जितनी विश लिस्ट थी ना, पूरी ड्रीम्स पूरे हुए हैं, विश ड्रीम पूरे पूरे एग्जैक्टली। And बट I कैसे can, हुआ, yeah, मैं नहीं and I बता can सकती। believe, yeah. और ये आपको क्रेडिट जाता है कि आपने जब ये सब, और हम सबको, जितने भी हम लोग इस सेशन में हैं, कि हम तैयार हैं प्रैक्टिस करने के लिए, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सारे चैलेंजेस लाइफ में से निकल जाएं, बिकॉज दिस इज, क्या बोलते हैं, ये टेम्पररी सोल्यूशन नहीं है,
कि हाँ, चोट अभी लगी मैंने बैंडेड बोला था लगाई, कि लास्ट वीक में और थोड़ा फिर डाउन चोट फॉल लगी, फिर बैंडेड लगाई, फिर चोट लगी बैंडेड लगाई, राइट? अभी मैंने लास्ट वीक शेयर किया था जब मैं थोड़ा डाउन की ओर जा रही थी, आपने बोला कि जहाँ प्रैक्टिस तो, और सच में जैसे खत्म हुआ, लिखना बंद हो गया था, वो प्रैक्टिस डाउन जा रही थी। आप तो जैसे ही आपने कहा मैंने वापस उसको प्रैक्टिस में लिया और वापस मेरा शुरू हो गया। आज भी सुबह सुबह मुझे मतलब मेरे जो मैंने कोई काम शुरू किया उसके कुछ कॉल्स आ गए, मतलब जो लाइफ जैसे चल रही थी वापस से मेरेकल्स होने शुरू हो रहे, जैसे ही यस, लिखना शुरू किया। very true. So thank you so much, Sonia ji, for sharing your personal experiences. And it is a very, very powerful journey. और मैं क्या, अब ये बुक गारंटी देती है कि आपकी लाइफ विल बी मैजिकल, आपकी लाइफ विल बी मिराकुलस। इफ I mean, मेरी life will be miraculous, मेरी life will be magical as well if I keep practicing these things. जैसी प्रैक्टिस छूटेगी, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसका मैं ये बता सकती हूँ कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये ग्रैटिट्यूड, ये लव देना, इट्स एंटी टॉक्सिन, इट्स अ वैक्सीन। जैसे हम वैक्सीन लगाते हैं ना, अब कितने डोज लगा चुके हैं हम वैक्सीन के? 3 डोज, 3। क्यों क्यों लगाए हम सबने? क्यों लगाए? जिंदा सेफ्टी रहना है, या लाइफ को एंजॉय करना है, जितने ज्यादा साल जी सके उसको जीना है, तो लगाते हैं ना डोज। हम विटामिन डी भी खाते हैं, B12 के इंजेक्शन लगवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं। क्यों? टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। मैम। ये ग्रैटिट्यूड और लव की वैक्सीन लगा लो सब, और ये डोज रोज खानी होती है, रोज। क्यों? टू ब्रिंग मैजिक्स एंड मिरेकल्स इन आवर लाइफ। यस मैम, मैं एक शेयर करूं। मैं ना अभी यहाँ के पहले थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने हिप्नोथेरेपिस्ट के पास गई थी। उन्होंने मुझे क्या बोला मैम, उस दिन बहुत बड़ी बात समझ में आई। वो बोलते हैं अनीता सब इधर है, तुम एफर्मेशन कर रही हो या नहीं, ये कर रही हो, नहीं हुआ क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई, नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला देखो तुम्हारा भी चेक करते, तो उन्होंने डाउजर से चेक किया, मुझे बोला अभी तुम ऐसी कोई बात सोचो जिससे तुम्हें बहुत खुशी मिलती है। वो सोचा और तुरंत मतलब 2 सेकंड में वो डाउजर ना पॉजिटिव घूम रहा था। फिर बोलते अभी वो बात सोचो कि जिससे तुम्हें बहुत दुख होता है। 2 ही सेकंड में वो सोचा और डाउजर टोटली एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो मैम उस दिन इतना तो समझ में आया कि जो है सब यहाँ है और हम 1 सेकंड में उस लाइन से ऊपर कैसे आ सके, मतलब बिलो द लाइन जब होते हैं ना, तो तुरंत कोई एक खुशी की बात हम सोचेंगे जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है। सामने वाले पर्सन को नहीं देखना है, लेकिन अपने बारे में सोचना है कि मैं किससे खुश हो सकती हूँ, तुरंत हम बाहर आ जाते हैं। मैम उस दिन बहुत बड़ी चीज मुझे देखने को मिली, मगर प्रैक्टिस में नहीं ला पाते। प्रैक्टिस मुझे यहाँ से मिली। प्रैक्टिस, या बहुत Yeah. वेरी वेरी पावरफुल। और ये फीलिंग्स, ये जो भाई थॉट से फीलिंग्स क्रिएट होती है, फीलिंग से वर्ड्स क्रिएट होते हैं, वर्ड से एक्शंस क्रिएट होते हैं। सो आर थॉट से ही सब कुछ, एक सोच से ही रशिया ने एक उनके सोच में आई और रशिया ने उसके ऊपर वॉर कर दी। तो एक सोच ही तो आई ना, सोच से हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। सो फीलिंग्स अप एंड डाउन कैसे हैं? बिकॉज फीलिंग्स आर आवर गॉड। रिमेंबर दैट लाइन इन द, अभी आई थी जो पावर बुक में, फीलिंग्स आर गॉड। But feelings develop according to the situation, according to the environment. जैसे आप देखोगे वैसे feelings develop होगी आपकी, and it's नहीं, auto. नहीं, ये उल्टा है। आप अभी मैंने वो भी शेयर किया, सोनिया जी ने भी शेयर किया, आपकी फीलिंग से ही बाहर की दुनिया क्रिएट हो रही है, बाहर की दुनिया से आपकी फीलिंग्स क्रिएट नहीं हो रही। यही टेक्निकल चीज समझने वाली बात है यहाँ पे। और हम क्या बोलते हैं कि नहीं उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा बोला, ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आई तभी मैंने ऐसे उसको रिएक्ट किया। नो,
This is the technical thing to understand. Whatever is inside is reflected outside. Maybe gradually I understand. Yeah, and that will come with practice. या पर जब इसको हम एक्सेप्ट करना कि जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, मेरे थॉट्स, फीलिंग्स और वर्ड्स एंड एक्शंस की वजह से हो रहा है, रिएक्शंस की वजह से हो रहा है, और जो भी अंदर हो रहा है वही बाहर नजर आ रहा है. इसको अगर हम समझ जाएं तो गॉसिप नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं देखना, ऑल दीज थिंग्स, ये जितने भी बोले गए थे स्टेटमेंट से, वो सारे अप्लाई होते हैं इन एवरी डे ऑफ आवर लाइफ्स. हमें लगता है कि नहीं ये तो सिर्फ नेताओं की बातें हैं, ये तो महात्मा गांधी ने बोला था हमें आजादी दिलाने के लिए, लेकिन हम भी तो उसमें फंसे हुए हैं कि नहीं फंसे हुए. हमें भी तो आजादी चाहिए ये नेगेटिव फीलिंग से, नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से. तो हमें आजादी कैसे मिलेगी? When will we be free? When will we feel we are free? After listening to Anju By ji, going on the path of love, forgiveness, and gratitude. That is the only solution. So thank you, everyone. Thank you so much for your beautiful sharings, your questions, your positive smiles, your energy, your enthusiasm to learn and to bring magics into your life. I'm so grateful and so blessed to be connected with all of you in this platform. Thank you so much for understanding, support, and logging in at different time zones and giving your precious time. Thank you for your beautiful messages, your love, your kind words, your appreciation. Thank you so much. आज हमारा meditation and everything miss हो गया, but we'll cover it up tomorrow, right? So Thank you so much. to you for Thank doing you, so thank you, much, for Thank wonderful you. session, amazing Thank you, session. ma'am. Thank you Thank you so much. much. so much, ma'am. Love you. Thank you. Love you so much, ma'am. Really, very good sessions, ma'am. Thank you, Jaina. Thank you. Thank you. God bless you. And Jaina ji ki sharing was so beautiful about her son. So हम कुछ भी देखो, कुछ भी अपनी थॉट से हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या मैजिक्स क्रिएट कर सकते हैं. सोनिया जी ने शेयर किया, जैना जी ने शेयर किया, अंकिता ने शेयर किया, मंजू जी ने शेयर किया, कितने लोगों ने अपनी, दीपा वाज सो ब्रेव एंड करेजियस टू आस्क दोस क्वेश्चन. सो इट्स ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में मैजिक्स होने शुरू नहीं हो गए, सबकी लाइफ में छोटे छोटे ऑलरेडी स्टार्टेड. और कईयों के जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया और जो लोग वीडियो ऑन करते हैं, मैं उनमें ऑलरेडी उनकी एनर्जी शिफ्टिंग देख सकती हूँ, बिकॉज I can see the smile on the face. I can see the face has changed. I can see the energy has changed. Even though I'm sitting far away, but अंजू मैम दिस इज वेरी ट्रू. जब मैं पहले आई थी 1 महीना पहला और आज मेरे चेहरे पे अभी स्माइल आ गई है, पहले नहीं थी. वही मैं आपको एक्चुअली मैंने नाम नहीं लिया, पर आई एम सो ग्लैड दैट यू एक्चुअली स्पोक. आपकी ही स्माइल देख के, मैं जब आप आए थे सेशन में, आप बड़े दुखी, बड़े फ्रस्ट्रेटेड, बड़े ही ऐसी एनर्जी के साथ थे, बट नाउ आई कैन सी द शिफ्ट इन एनर्जी इन यू. आई कैन सी द स्माइल इन ऑन योर फेस. oh, I want to be the same. इससे मैम आई एम प्रूफ. मैम नीलम जी, yes, look at नीलम जी, yes. प्लीज मिस कर मैं तो fully proof हूँ, मैम. वेरी ट्रू. और मैं इसलिए आपको इनकरेज करती हूँ, कि अपनी वीडियोस को ऑन रखो. द अदर थिंग इज दैट आई कैन सी द एनर्जी, आप कौन सी एनर्जी में है. हो सकता है मैं उस एनर्जी को पिक करके वैसा कोई एग्जाम्पल दे दूं, वैसा कुछ बोल दूं जो आपके साथ कनेक्ट हो जाए. और मैं ये भी करती हूँ कि जैसे व्हेन आई सी योर समवन्स फेस,
they are sad today, they are not smiling, or there is something going on in your life, then at least, we can give the blessings, we can give the prayers, we can give that encouragement. हम सब, क्योंकि हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं कि आज ये बंदा रे हमेशा स्माइल करता था पर आज सैड क्यों लग रहा है, या हमेशा सैड होता था, देखो आज स्माइल कर रहा है. सो आपकी एनर्जीज को पिक कर सकते हैं और उस हिसाब से आपको ब्लेसिंग्स, आपको लव भेज सकते हैं. आप बहुत सारी वाइब्रेशंस आपकी तरफ, हीलिंग वाइब्रेशंस भी भेज सकते हैं. So it's very, very important that you keep your videos on and come with whatever you're going through. And then after the session, you will see that there is a shift in the energy, or maybe at the end of the day, you will see there is a shift in the energy. So thank you so much. Thank you so much. And thank you, Rajkumari ji. I think we're nikal gayi hai. So for the beautiful reading. So thank you everyone. We'll see you tomorrow. मेरा आज पूरी कोशिश थी कि मैं चैप्टर खत्म करूंगी. एनर्जी मिलता है मैम. हाँ, आपसे मिलके बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलता है हम लोग को. अरे मेरे को आपको देख के पॉजिटिव एनर्जी मिलता है. बट थैंक यू सो मच. And look at जी, Geeta ji smile. She is looking so glamorous today. Like her hairstyle, her sari and smile, and it's so beautiful to see smiles. I don't know आप क्यों अपने faces को hide करके रखते हैं, but आपके चेहरे से, like चतवानी जी, look at your smile, look at your energy. It's so beautiful. We all can motivate and encourage and inspire each other on this platform. So thank you so much for being here. Thank you. And keep doing your wonderful practices, your powerful practice. Love you all. God bless you. Thank you. Love you. Thank you, ma'am. Love For you. wonderful Thank you. session. Love you all. Thank you so Thank much. you. You are our universe. अरे नहीं भैया. या यूनिवर्स को जैसे पता चलता ना मैम, मैंने 3-4 बार जब रीडिंग की है, वो लेसन एक लाइन जैसे मेरे लिए थी. ऐसा हुआ है हमेशा जब रीडिंग की है मैंने. कैसे आप किसको परमिशन देते हैं ना, और आप जो बोल रहे हैं कि मैं फेस देख के फिर वैसी ब्लेसिंग रियली आप दे रहे हैं, मतलब फीलिंग आती है मुझे तो, बहुत बार आती है. I completely agree with her. Yeah. Yes, agree with her. थैंक यू मैम. हमसे इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम. लव यू. Love you. Ma'am, the day Love you. we don't listen to you, we feel something is missing. It's so much powerful that your aura is so positive that we feel like every day it's a must. It should be must like. अरे वो मेरा ऑरा नहीं है, वो ग्रैटिट्यूड, लव और पावर का ऑरा है. उसकी डोज हमें रोज चाहिए होती है. और वो मेरे देखो इंजेक्शन लगता है तो वो डॉक्टर के थ्रू लगता है ना, हम अपने आप थोड़ी इंजेक्शन लगाते हैं. So But still it is coming through you. So we take you as a thing. no, thank you so much for all your love, your blessings, your kind words and appreciation. मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ. और ये आप ही नहीं, मैं भी बहुत मिस करती हूँ. जैसे मेरे को, आई एम सो एक्साइटेड टू कम इन द सेशन, टू बी कनेक्टेड विद यू. आई ऑलवेज, मतलब मेरा पूरा दिन इसी में लगता है कि यार टाइम होने वाला है, टाइम होने वाला है, आज ये बोलना है, आज ये बोलना है, आज ये सिखाना है, आज ये करना है, आज ऐसी मेडिटेशन करानी है. सो ऑल द टाइम आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दिस. सो always excited to be with you all. मैम भगवान सर क्यों नहीं आ रहे? भगवान सर कहाँ है? वो घूमने गए हैं. आई थिंक आने वाले होंगे 1-2 दिन. मैम आज स्वराज को देखिए कितना हैप्पी लग रहा है. स्वराज, लव यू. Oh yes, स्वराज. So देखो आप सबकी मोटिवेशन से स्वराज has inspired himself to open the video. So look at Swaraj smile. Yeah. God bless you. God bless you. Hello, Love Swaraj. your smile. Love your smile. Hello. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank Love you, Anju, ma'am. for Bye-bye.